with? Like, first of all, so I think Celebration. first is the best celebration. Deva becoming the second ED. So I think Yes, congratulations. uh, the dedication, the birthday boy is celebrating something else. Okay. And I think it was a super day for Gurukul also. I think all 4 days went really well. Almost 350 people were inducted daily, continuously. I think there was not much of a difference in attendance also. So that was a big success from all of us. And special thanks to Nandu Bhaiya for his creatives and everything. Whenever I've asked him to create something, first of all he did it by himself. Then I was like कि जो वो हमारे हिंदी में कहावत है ना, जो बोले सो कुंडी खोले. So he helped me 2 times. Then I became demanding. So every time I used to call him and tell him that I need this creative, and he used to give that to me. So I think, and I have troubled him till late night. I think 12:30 I have troubled him. So Nandu Bhaiya, first of all, thanks for that. कहाँ गए? नंदू भैया निकल लिया, उनका नेटवर्क नेटवर्क चला गया. आगे फिर से आ गए. आ रहे हैं. कोई बात नहीं. Okay. So I think overall Gurukul went really well. It was more than expected. When we were planning for Gurukul, we thought that there would be approximately 100-150 people in both the sessions. So, but it was almost 2 times what we actually thought of. And the best part, I think so, is you would be the better judge, because I would like you to share your views. Today we might extend a bit of this meeting. What you liked about the Gurukul, and what are the feedbacks for the next Gurukul? Because this was the first of its kind Gurukul that we did in Global Garner. There must be some good thing also, but there must be many things where we need to improve also. So I think, of course, next time onwards, we might be doing it physically, not on this thing on Zoom or something. But of course, the experience that you had, the content that we delivered, any suggestions that you feel that these need to be corrected. Of course, we have all talked about good things, but of course, there would be lot of improvement that your team must be telling you that sir, अगर ये होता ना तो ये और अच्छा होता. So if there is some point that you want to make, please do it, because next we want to take it to next level. Look, Global Garner's biggest USP is that we have been an organization which hears a lot. So we take feedback from the field. Therefore, today we have answers to everything. That is why we like, even if you have seen Amit also doing this session today, we know as soon as the person starts, 90% of the time we know that what is the actual question that he is asking. There might be 10%, okay, we might get confused with the question, but there are 90% chances that we know what he is actually asking when he has completed only 10% of his question. So I think that has been our USP, and that has come because people have given us too many feedbacks. So I would like everyone to speak today, just for 1 minute, just for 1 minute. Give your feedback, whatever, and I don't want to listen only good things. Of course, whatever good we did, you already told us. Any feedback that you have, that your team might have told you that this should be the content, this should be the question answer, this much time should have been given to this much time. So I think that feedback we need, because that will help us to design a better Gurukul next time. Though we got the very good feedback, still we see that a lot of people are charged up. But this was first attempt, and first attempt is not always the 100%. So we want to improve ourselves on the Gurukul part also. Raman Bhaiya designed it really well. I never had a clue what is actually in the entire kitty, but the entire content was designed like anything. I think things went really well what he has designed, and I think we were able to deliver as per his expectation. I would like him to also address this, that because his session was only for the first day, but rest we all three did that. So his comments would also be very crucial for us, because he has put the main mind behind the entire Gurukul stuff. So Raman Bhaiya, I would like you to actually start this session. So once we have this, we'll go to the calculators that we have discussed, that we'll be discussing today.
So just very briefly, very, very quick feedbacks, not only good things, feedbacks. Raman Bhaiya, we can start with you. I think we should be listening to her because this is our baby. तो अपना बच्चा तो सबको सुंदर लगता ही है. जी जी. तो हमको तो ये लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया हो गया. ठीक है. We just given 1 week. एक हफ्ता ही लगा हमको उसको क्रिएट करने में, इससे ज्यादा तो नहीं लगा. तो अभी हमारे पास 1 महीना और है अगला लाने के लिए. तो आप लोग जितना भी फीडबैक देंगे उसके हिसाब से वी विल डेफिनेटली राइट इन चेंजेस. और हम ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये समय ठीक था, इतना ही समय चाहिए था, ये कंटेंट ठीक था, ये भी आप बताइए. या जो टॉपिक्स हैं इसके अलावा और भी कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो गए, या इन टॉपिक्स का ट्रीटमेंट ठीक था, कहीं हम बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहे थे. एवरीथिंग वी वुड लाइक टू लिसन टू यू. यस, जो कंटेंट अभी क्रिएट किया था वो तो डेफिनेटली इट वाज अ टीम वर्क. विकास भैया, यू ऑल, हम तीनों तो रोज, ठीक है. अमित, वी नो दैट ही इज द सुपर एक्सपर्ट. तो अमित से हम हर रोज बात नहीं कर, हमको वी वर सो कॉन्फिडेंट कि अमित को तो सोते हुए उठाएंगे तो ही विल डू दैट. एंड आई हैव सीन अमित एवरी वर्क जहाँ कहीं होती है फ्लॉलेस. तो वहां हमको चिंता नहीं थी. चिंता हम तीनों नलायकों को थी कि हम तीनों कर पाएंगे कि नहीं. बट वी डिड वेरी वेल मेरे हिसाब से. बहुत मैं इतना बोलना चाहूंगा कि शायद जो पिछले काफी टाइम से हम जो करना चाह रहे थे, पहले भी जो हमारी पुरानी टीम्स रही हैं और जो हमेशा हमसे हम करना चाह रहे थे ट्रेनिंग को लेके, कोचिंग को लेके, शायद एक्चुअली अब हम कर पा रहे हैं. दैट इज द मेन थिंग. और दोनों गुरुजी को प्रणाम है इसके लिए कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इतने बढ़िया तरीके से इसको ड्राइव किया उन्होंने पूरे प्रोग्राम को. सो अगेन मैं इतना ही बोलूंगा कि बहुत बढ़िया तरीके से जो हम सालों से करने की कोशिश कर रहे थे, शायद अब एक्चुअली हम वो कर पा रहे हैं. Thank you so much to both of you. I have one suggestion, Raman Bhaiya. I have a suggestion. Yes, भैया. My suggestion is कि हम लोग improvements के बारे में directly, personally, individually रमन भैया को लिखें. इसलिए कि public में हम लोग अच्छी बातें करेंगे. हालांकि individually जब बात करेंगे तो हम परफेक्ट इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशन दे सकते हैं. तो प्लीज कृपया अगर ये सब सही लगता है तो लेट अस डू दिस इंडिविजुअली. But that way I'm very happy for Anup भैया. He calls me and he tells कि भैया मैं सबके सामने नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा ऐसा कर लो, ये थोड़ा सा ऐसा कर लो. For that Anup भैया, thank you so much for that feedback. तो ये सब अगर हमें बताएंगे तो next one will be easier. I know it's very difficult. Let's be very honest. It's very difficult to criticize any program in public. So let's do this individually. If Vikas is okay with it. I first of all, I don't believe that it is a criticism because we all are a team, and I don't think any time when we talk to each other it is criticizing. Even we might fight also. Family also has a fight. So I think we should be open for that, and we should not mind also. This core group should actually not mind each other's words first of all. अगर हम इतने sensitive रहते कि हमें सबके सामने कुछ बोल दिया and something like this, so I think then that team spirit is missing. Team means team. Individually we might do anything, but team means team, and like I do it with my staff. Anything I have in me is delivered to them. I have never done any one-to-one meeting with anyone. If there is some problem with someone, they can come to me and do one-to-one. But mostly I have done kept it very open environment in my office also, where we discuss anything, and feedbacks should be taken on a very positive way, because it cannot be that we are perfect. First of all, if we have been perfect, it would have required everyone to be just like this, that we could have given the military rules to follow this. So I think it is open, idea is taken. I have no issue with that. You can call individually to Ramesh bhai or Raman bhaiya to give all the feedbacks. I'm the last one to actually get into all this learned stuff. I can help you with all the whole bachan jo bhi hai, but I think the designing part and everything is well taken by Ramesh bhai and Raman bhaiya. So you all are welcome to give your feedbacks to them, and that is okay. That is okay. No issue. नहीं विकास भैया, इसमें विकास भैया
जी जी इसमें एक चीज कैसी है ना कि अभी फीडबैक जो देने हैं इसके लिए मिनिमम 2 दिन 3 दिन का और समय चाहिए, क्योंकि सारे लोगों से फीडबैक अभी आए नहीं है। जी जी 3 दिन का कंटिन्यू मीटिंग प्रोसेस चल रहा था, तो सही सब बात। लोग लगे हुए थे। तो अभी 2 दिन 3 दिन में अपने पास सही फीडबैक्स आ जाएंगे लोगों से, ठीक है, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तो मजा भी आएगा। और वो आपका दिल बहुत बड़ा है, इसमें कोई दुमत नहीं है, हम लोग सब पब्लिकली चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, पहले तो आपको धन्यवाद किया था मैंने, आपने सुना नहीं, आप गायब थे। मैंने कहा मैंने आपकी बड़ी जान खाई, तो उसके लिए धन्यवाद। रात को 12 बजे आपको फोन किया, मैसेज किया, बट थैंक यू। और मुझे लगता है जो एक द सपोर्ट यू गेव मी विच वाज नहीं, रात एक्चुअली को मैं बिहाइंड द सबको कर्टन रात सपोर्ट। को 12 बजे फॉलो कर रहा था सब लोगों से। हाँ, that I have seen. So I think अतुल भाई कोहली your की excitement to bring in everyone, so it was really good, and I really नहीं, appreciate you are seriously you are a team player. So दिस that इज माई I ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी। आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके काम के लिए तो थोड़ी चलेगा, ड्यूटी है नहीं really good. ड्यूटी है, ये ड्यूटी है। Okay. So yeah. अनूप कुछ कहना चाह रहे थे, 2 बार हाथ खड़ा हाँ किया। भैया, मेरा एक सजेशन था खलील को लेके कि अभी तो हम थोड़े रश में भी हैं कि हमें एसीपीज बनाने हैं, लेकिन एसीपी ही हमारा मेन स्ट्रेंथ है पूरी टीम का। तो फ्यूचर में एसीपी रजिस्टर हो जाए, मेरा सजेशन है। कोई एक पॉइंट में हम जहां हमको जो हमारा ब्रेक इवन के बाद में एसीपी रजिस्टर हो जाए, लेकिन पिन कोड अलॉटमेंट के पहले उसको ये एग्जाम देना कंपलसरी है, चाहे वो देख के एग्जाम दे। मैं अपनी बात शायद समझा पा रहा हूँ तो। अनूप जी भैया। अनूप, इसमें क्या हुआ, सब लोगों से काफी बात हुई। क्या हुआ ना कि अभी पहले बात करो। अपने सुनो बेटे, इसमें बहुत लोगों से बात हुई। पहले क्या हुआ, अपन लोगों ने ये डिस्कशन नहीं किया था कि एसीपी को उसकी ट्रेनिंग होगी, उसको एग्जाम देना होगा, उसको सारी चीजें करनी होगी, ये नहीं हुआ। लोगों ने अपने अपने पिन कोड लेने के लिए एसीपी को रजिस्टर्ड कर दिया, सारी चीजें एकदम हो सही गई। है। अब अपने को ये बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे एसीपी को खड़े उतरने के लिए ट्रेनिंग देनी है, उनको पास करना जरूरी है, समझ गए ना? बिना पास हुए, लेकिन अब कई लोग नहीं पास हो गए तो फिर क्या होगा, ये भी चीजें अपने को इस पे थिंकिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। नंदू भैया, कल रमेश भैया ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि फाइनली अगर स्टेट है लिख के भेज देगा तो ऐसे कुछ लोग पक्का होंगे जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन काम बहुत अच्छा करेंगे। तो कल मैं कहता रमेश सर ने बोला भी था, अगर स्टेट हेड लिख के भेज देगा तो वो एसीपी बन जाए। हाँ नहीं, वो बात मैंने वही कहने का मतलब मेरा वही है कि ये सब चीजें क्या हुई ना कि अपन लोगों ने ये पहले से ट्रेनिंग की कंसेप्ट अपने दिमाग में होती, तो ये सारी चीज अब क्या धीरे धीरे अपनी जैसी प्रोग्रेस हो रही है उस हिसाब से अपने डेवलपमेंट आ रहे हैं, और वो डेवलपमेंट इज वेरी गुड। हाँ, इसके बाद की जो अभी अपनी ट्रेनिंग सेशन होगा नेक्स्ट मंथ का, उस नेक्स्ट मंथ के ट्रेनिंग में बिल्कुल अपन लोग डंडा मार के सब लोगों को खड़ा करेंगे कि बिल्कुल आपको ऐसे खड़े रहना बेसिकली। इस बगैर तो क्या लोगों को आगे मैं जो बात कर रहा हूँ भविष्य, मैं जो बात कर रहा हूँ भविष्य का, अभी एक ब्रेक इवन पॉइंट तक हमको बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल दिस इज राइट, 100% एग्री एकदम। ठीक है, सोचा जा सकता है, अगले महीने की बात है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। परसों कितने लोग पास होते हैं देख लेते हैं। अगर समस्या कुछ गंभीर है तो फिर बाद में रात को बात कर लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा भरोसा है कि बहुत से लोग पास हो जाएंगे, 100% पास हो जाएंगे। सर मेरा इसमें एक सिंपल सजेशन था, इफ यू डोंट टेक अदरवाइज, रमेश भैया बोलो। ये जो अपन लोगों ने जो प्रेजेंटेशन किया था ना, बीच से लोगों को उठा के, जो कि उनको कैसे दुकान में जाएंगे तो क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन अपन ने किया था, ये भैया अपन वेल इन एडवांस बोल के रखते और प्रिपरेशन के साथ जो लोग रहते और उनका प्रेजेंटेशन होता तो ज्यादा बेटर नहीं लगता था भैया? बात सही है, नेक्स्ट टाइम इसको हम जरूर ऐसा ही करेंगे। हाँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा इसलिए। ओके भैया, सॉरी। हम आगे बढ़ सकते हैं विकास भैया? हाँ। ओके, सो जैसा कल डिसाइड किया था, हम एक्सेल को देखें। आप एक्सेल देखें, उसके पहले मुझे सिर्फ एक बात कहनी है जी, और वो ये है कि हमारे 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए जी। मई एंड तक, और 6 चाहिए।
नंदू भैया तो कल बन जाएंगे भाई साहब, नंदू भैया तो कल बन जाएंगे। मुझे पता है, थर्ड मैं अभी नंबर मैं नाम दूंगा। लेना नहीं चाहता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि बाकी के 6 जो है ना वो मई की 20 तारीख के पहले भी हो जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ कि हमें चाहिए। नंदू भैया की मैंने हंसी तो ने सब कह दिया। मैंने तो साहब टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है नंदू भैया के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। कल वो टेक्स्ट मुझे भेजना है। देखो भाई, तुम तो मजाक में उड़ाओ, मैं तो बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, 6 लोग और चाहिए बस। सर अब सीरियस हंस रहे हैं, मैं सीरियसली हंस रहा हूँ बस, चलो मैं सीरियसली हंस अब लूंगा, सीरियस हंस रहे हैं एकदम बिल्कुल। लेकिन 6 लोग चाहिए और मुझे। लोगों से काम करवा लेने का तरीका रमेश भैया से सीखना पड़ता है, ये आइडिया है। 6 चाहिए बस। हो जाएंगे भैया, हो जाएंगे। आपने बस। टीम में सब हीरे चुने हैं, हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। बस इतना ही आपकी चाहिए। शान को धक्का नहीं लगेगा। अगर नंदू भैया ने कहा हो जाएंगे तो मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे तो भैया, आपके शान को कहीं धक्का नहीं लगेगा, समझ गए ना। Alright. हमारा छत्तीसगढ़ तैयारी है, उसके पूरे एनसीपी बने हुए हैं, बस फटाफट यूपॉज ही लेने लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा छत्तीसगढ़ रेडी बैठा हुआ है। राजस्थान आज जोश में आ ही गया है, समझ गए। वैसे महाराष्ट्र कहाँ पीछे है? नहीं, महाराष्ट्र तो सवाल नहीं, तो आप जब बोलेंगे डिक्लेयर करवाएंगे। नंदू भैया थोड़ा संजय भैया को भी जगाइए, सो रहे हैं लग रहा है। नहीं, एक्सक्यूज मी, संजय भैया नहीं सो रहे, वो ऐसा दिखाओ बता रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ। हर दिन देखो एक एमसीपी ऐड हो रहा है भाई। नहीं, वो सोते नहीं, सोते नहीं। तो संजय भाई को आप डिस्काउंट हमारे यहाँ पर क्या है, जो हमने भारतीय जेसीस के अंदर एक देखा है कि हम लोग इतना सब लगे रहने के बाद जो नहीं लेके जा सकते, वो संजय दाता भैया एक बार आते और पूरा लेके चले जाते हैं। ये बात सही है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेके जाएंगे पक्का। राइट, विकास, ओवर टू यू। ओके, सो पहले हम यूपॉस पे जाना चाहेंगे कि हम एसीपी का गोल शीट देखना चाहेंगे? कुछ भी जो आपको यूपॉस पे। ओके भैया, अगर हम लोग अपना आपका माइक म्यूट है सर। संधू सर, संधू सर। नंदू ऑफ है, संजय भैया बोलो। हाँ संधू सर। हाँ जी बोलिए। वो आज क्या होस्ट कुछ वो ज्यादा हो गए थे पार्टिसिपेंट्स, क्या मतलब वो उनका था, विकास जी का आ रहा था कि वो शायद जो है वो नहीं, वो गलत कुछ लॉगिन कर रहे थे, तो उनको फिर मैंने दूसरा लॉगिन भेजा था, तो दूसरे लॉगिन से लॉगिन हो गए थे वो। हेलो। हाँ जी, चलो भाई शुरू करो। नहीं आ रही सर, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ वो शायद कुछ गलत से उससे लॉगिन कर रहे थे, तो मैंने उनको दूसरे आईडी से लॉगिन करने बोला, तो फिर वो लॉगिन हो गए थे। उनका फोन आया था मुझे। ओके, ठीक है। अब हमने सिंपल एक ये कैलकुलेटर बनाया है। अब इसमें हम अपने जो जितने एसीपीज हैं, जो पार्टनर्स हैं, मैं चाहता हूं इसके ऊपर हम उनकी एक 15-20 मिनट की ट्रेनिंग करवाएं। सिर्फ 20 से 25 मिनट लगता है इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करने में। हमें इनको सिखाना है कि आप अपने किसी भी कस्टमर के पास जाएं और उसकी पहले गोल सेटिंग करें कि सर मैं अगर आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूं जिसमें आप अगर 50,000 रुपए लगाते हैं तो आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेट से आपको आज के आज अगर 50,000 देना है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप क्या इनकम उससे करें। तो जनरली जैसे अभी तक हमने जितने सेशन किए हैं, किसी ने बोला है मुझे अगर 50,000 रुपये महीना मिलेगा तो मैं कर सकता हूं। या आप लोग भी एक बार वो राउंड करिए मेरे साथ। मान लीजिए आप वो पर्सन है जिसको मैं यूपॉस बेचने आया हूं। आप में से 5 लोग आ सकते हैं मेरे साथ, इस पूरे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो कौन आएगा? पहले मैं देख लेता हूं कौन कौन आ रहा है। देवराज। सॉरी, देवराज। ओके, 1 इज देवराज। सेकेंड
अनूप अनूप ओके अनूप भाई थर्ड वन बालू सर रुको जस्ट होल्ड ऑन अनूप भाई देवराज सर मैंने अपना वीडियो बंद रखा है क्योंकि मेरा नेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ रखा है। हाँ वीडियो ऑफ रखी ना, मैं वैसे भी आपको देख नहीं रहा, मैं एक्सेल देख रहा हूँ। अनूप भाई हो गए, देवराज हो गए, थर्ड वन सुशील। ओके सुशील भाई ओके फोर्थ वन बालू भी बोला है, बालू का आवाज आया था। ओके बालू। फिफ्थ वन कोई एक आदमी और आ जाइए। प्रदीप है सर। केशव भाई कौन बोल रहा है? प्रदीप बोल रहे हैं। प्रदीप ओके ओके प्रदीप भाई ओके। सो नाउ लेट्स से अगर मैं आपके पास आता हूं, मैं बोलता हूं मैं आपसे 50,000 रुपए चाहता हूं और मैं आज के आज चाहता हूं, तो आपकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप ये इस बिजनेस मॉडल में मेरे साथ अगर ये 50,000 रुपए लगाते हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप कितना पैसा हर महीने कमाओ? अनूप भाई। भैया सबसे पहले तो एक बंदा बोलेगा कि भाई मेरा 50,000 कैसे निकले, तो अपन अगर मान लीजिए 25,000 महीना बचे कम से कम, 25,000 रुपए महीना कम से कम बचे तो आपको ये 50,000 रुपए देने में कोई आपत्ति नहीं है, करेक्ट? हाँ, यही बोलना चाहते हैं। और इस 25,000 रुपए से आप कितने लोगों से हर महीने बात करने के लिए तैयार हैं? 10-15 लोगों से आप महीने में बात करने को तैयार हैं? पूरे महीने में आप 10-15 बोल रहे हैं या आप केवल एक दिन? नहीं देखिए, मैं तो एक दिन में 10 से बात करूंगा, लेकिन मैं अपने आप से 15-20-25 लोगों को जोड़ लूंगा अपने महीने में। चलिए मैं 10 लोग पकड़ के चलता हूं, आप 10 नए लोगों को अपने यूपॉज में हर महीने जोड़ेंगे, करेक्ट? अगर आपको 25,000 रुपए महीना मिले तो आप 10 लोगों को हर महीने जोड़ सकते हैं अपने यूपॉज में, करेक्ट? देवा। राइट सर। मेंढकी देखो ना कैसे कूद रही है सर। 50,000 ओके 50,000 एटलीस्ट 30 यूजर्स फॉर यूपास एवरी मंथ। सुशील भाई। 50,000 per month. And how many users you can add for this 50,000? 10 per month. 10 per month. Okay. Balu. Sir, 1 lakh. 1 lakh. And how many users per month? 100. 100. Okay. Pradeep bhai. 30,000. 30,000. And users per month? 10 users. 10 users. Okay. So you are investing 54,000 with me, right? You all are investing 54,000, and the different goals are for different people, right? But one thing is common for all, that the return on investment what you are asking me to give you is more than 46% for everyone almost, right? And this is month on month. Right. Into 12. So you are asking me to deliver you 55% return annually. Sorry, 555%. Right. Right? Huh. Now we need to ask that consumer like you all, how many business have you seen which are giving such a high return? We have not seen. No. Then why Global Garner is a special case for you? What we are trying to say is that we are telling him that we are increasing your sale because we increase your sale because you're going to get you additional customers, and we believe that we can assure you that this product will bring in you the additional customers by utilizing the existing database that you have, which Look, is not first being of all, there would be no businessman who will be actually servicing only 10 customers. Right. Right? So first of all, we are not telling him to increase his customer base. Right. Right? Because who is our prospect? Cable operators, retail shop owners. मोबाइल पर ये तो वहीं बैठ के कर सकते हैं। सर मैं सब लोग को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा यहाँ फोकस करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जब गोल सेटिंग आप कर लोगे ना, यूपॉस बेचना आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस पे। मैं चाहता हूं इसी तरह आप अपने बंदों को ट्रेन करें, क्योंकि बोलने वाला जब तक आदमी को, हमें इंश्योरेंस पे जैसे सिखाया जाता था
मैं आपको इंश्योरेंस के तरीके से केवल इसको गोल सेटिंग करना बता रहा हूं। जब भी आपको कोई इस तरह के नंबर दे तो आप उससे पूछिए कि सर अभी तक आपने कितने ऐसे बिजनेस देखे हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करो तो आपको 500% आरओआई मिले, 1000% आरओआई मिले, 2000% आरओआई मिले या 600% आरओआई मिले, वो भी एनुअल। तो इस पे जनरली 99.9% कोई बंदा आपको ऐसा बिजनेस नहीं बता सकता जिसमें इस तरह का आरओआई आता हो। राइट। बट फिर आप एंड में बोलिए चलिए फिर भी सर मैंने ये आपने वेग में बोला होगा, जैसे भी बोला होगा, मैं ये मान लेता हूं कि आप यही करेंगे, क्योंकि आज अगर आपको महीने का लेट से 50,000 रुपए चाहिए तो आपको मालूम है एक कस्टमर सर्विस करने से नहीं होता है दिन का। अगर किसी को 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो वो नया नया बिजनेस जाता है, सेम कस्टमर के पास भी नहीं जा सकता है। करेक्ट। फिर भी हम यहाँ पे जो सबसे कम बोली लगी है वो 10 कस्टमर की लगी है, हम उसको कंसिडर करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये 10 कस्टमर्स का खर्चा क्या है महीने का, और ये 10 ही कस्टमर की बात हम कर रहे हैं। अब इनका जो एनुअल खर्चा है उनके लाइट बिल पे, उनके टेलीफोन बिल पे, उनके मोबाइल बिल पे, उनके वाटर पे, उनके D2H पे, जो उनका घर में केबल लगा हुआ है, Amazon प्राइम और ये सब लिया हुआ है, तो ये सब, तो ये उनका मिला के हमने लिया है 60,000। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 5,000 रुपए महीने में लाइट बिल से लेके वाटर बिल से लेके सब कुछ आ गया। तो अगर आप इसको कम करना है या ज्यादा करना है आप बताएं। अनूप भाई, देवा। 1 लाख के मिनिमम सर, मतलब 1 लाख तो हमारा तो बिजली बिल 15,000 होता है महीने का। करेक्ट, क्योंकि 10 लोगों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम मासेस की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग जब बीओटी करते हैं तो वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, मगर यहाँ पे हम बहुत ही यूनिक चीज की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट मासेस। जब आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं दैट इज क्लास। महीने में 10 लोगों की बात। जी भैया, मिनिमम लाख रुपए है, 50,000 नहीं, मिनिमम लाख। 1 लाख मिनिमम। Is everyone okay with this? Yes. Okay. I have taken grocery to be 1,20,000, which means 10,000 rupees in a month for family of 4 people. Is it okay? Less, more? What you want to do? It is less because sometimes you can assume that they buy some groceries from the Kirana, some groceries from global garner vendors. So let us put it as 1,20,000 itself. Okay, so you are okay with this, no? Yes. Clothing 60,000 rupees annually for 4 people. I don't think so. ज़्यादा होगा सर। ज़्यादा होगा, कम होगा, आप बताओ। Because look, same example you have to do with your ACPs. Yeah. One average family 60,000 is good enough. Okay. Insurance I have taken 1.5 lakh rupees in a year time, just considering that a person today earning has an eligibility of getting it under 80C 1.5 lakh rebate. Correct? So I have considered only 1% of the family to be earning, and that 1.5 lakh rupees I have considered here. नहीं, पर इसमें जो है वो उसको पीएफ वगैरह भी एडजस्ट होता है, तो इंश्योरेंस जो है प्लीज टेक ओनली 1 lakh only. Okay, 1 lakh, no issue. I have taken that we can give 30 lakh rupees loan to 50 people in a year's time. Is it okay or less, more? What you want to do? 50 people in a year in totality, not 10 every month. It is 50 people in a year. Is it okay, less, more? What do you want to do? 30 lakh rupees loan to 50 people. What do you want to do? Total 30 lakh है कि 30 lakh into 50 people? 30 लाख इंटू 50 पीपल, 23 लाख इंटू 50 पीपल, 50 लोगों को आप 30-30 लाख रुपए का लोन देने की हम बात कर रहे हैं। नहीं सर, इतना नहीं होगा। 10 लाख ये 10 लोग? नहीं, 10 लोग सर, 10 लोग बहुत हो गए। 10 लोग एक नॉर्मल आदमी के 10 आदमी बहुत। ओके, देखिए सर, इसमें चैलेंज है, इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। बैंक के एग्जीक्यूटिव जान लगा देते हैं लोन देने के लिए। नहीं, यहाँ भी बैंक ही बात जाएंगे, हम नहीं जा रहे हैं, बट जाएगा तो बैंक ही। हम तो लीड दे रहे हैं ना, काम तो उसी ने करना है, हमको थोड़ी ना लोन इशू करना है। बट ठीक है, मैं उसको 10 कर दूंगा। अभी जब मैं नंबर्स पे आऊंगा मैं उसको साल का 10 लोग कर दूंगा। फ्लाइट 36,000 रुपीज इन अ ईयर्स टाइम,
अब ये तो हो तो गई। इसको नहीं, इसको आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि आप सब ट्रेनर और इस तरह की लॉबीज हैं, आपका ट्रैवल बहुत हाई होता है। एक कॉमन पर्सन हमारा तो 2 लाख, हमारा तो हम लोग का 2 लाख, लेकिन एक नॉर्मल आदमी 25-30 हजार खर्चा करता है अपने इसमें फैमिली के साथ। तो नहीं, फैमिली वाला नीचे आ रहा है, फैमिली वाला नीचे आ रहा है। 20,000 रुपए मैं मान के चलता हूँ, उसको बिजनेस ट्रैवल में डालना पड़ता है हर साल, और ट्रैवल और फूड में, मतलब फैमिली ट्रैवल एंड फैमिली फूडिंग, इसमें मैंने 50,000 रुपए साल का लिया है। ये कम है, ज्यादा है, क्या करना चाहेंगे इसको? अरे एक हॉलीडे हो तो 2 लाख रुपए लग जाता है फैमिली की हॉलीडे। जी वैसे तो लग जाता है। विकास जी, आपका ऊपर और नीचे मिला के 85-90,000 मिला के एकदम सही है। ओके ठीक है। और फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कभी कुछ खराब हो गया, कभी प्लम्बर बुला लिया, कभी कारपेंटर बुला लिया, कभी घर का पेंटिंग करवा लिया, कभी कुछ करा लिया, कभी कुछ करा लिया, उसका पूरे साल का मैंने 1 लाख रुपए कंसिडर किया है। इसको आप क्या करना चाहेंगे? कम ये ज्यादा है। ओके ठीक है, तो बताइए कितना करा जाए? 25,000 बहुत है। 25,000? हाँ जी। ओके 25,000। रियल स्टेट, क्या हम 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 50 लोगों को बेच सकते हैं साल में? सर जब आपने लोन को वहां पर 10 कर दिया, इसको भी 10 कर दीजिए। ओके मतलब नंबर ऑफ पीपल केवल कम करना है, करेक्ट? हाँ जी ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं। अब अगर इतने टारगेट से हम आपकी ये गोल अचीव कर पाए, तो आप बोल रहे हैं कि आप मुझे ये यूपॉस का पैसा आज के आज दे देंगे, करेक्ट? हमें यही बोलना है अपने कस्टमर्स को, क्योंकि अब अगर वो पीछे हटे तो वो अपनी जबान से मुंह कर रहे हैं, हमें उनकी जबान को बस केवल कंट्रोल कर लेना है। तो ये रहा, और पहले मैं आपका वो 10-10 कर देता हूं, 10 और ये रहा 10, ठीक है? तो अब ये आउटपुट है हमारा, केवल 10 कस्टमर अगर हम मंथली जोड़ते हैं अपने यूपॉज में, तो सबसे पहले तो हमारा जो एनुअल अर्निंग है, जो इमीडिएट अर्निंग होगा, वो करीब 18,27,000 रुपए होगा, करेक्ट? With only an addition of 10 customer per month, which means 120 customer in a year's time. Fair enough? Yes. Plus, because you have earned 18 lakh rupees as real money, you will also get 1 crore 82 lakhs as GG coins. Right. Correct? Plus, if even 10%, which means one person in a month is okay with my circle cashback, then your earning would be 1 crore 20 lakh rupees, and rest 90% go into only and only IC. I am not considering RPP also, I am not considering FIFO also. Okay. Only IC, 90% will go into IC and 10% going into my circle will give you a revenue of 12,51,000. So in totality on UPOS, by adding 10 members every month, you are getting 1 crore 50,78,000 in a year's time, and this would be your regular income per annum. Is it good or bad? Very good, sir. Whereas you have set an expectation, at the highest expectation which was set to me was 1 lakh per month, but for 1 lakh he was ready to add 100 customer per month. I am talking only 1/10 of it. Right. And still the income is on a very higher side. Let's say now we have to again demonstrate something very extraordinary. Let's make my circle to be 0. Then also the income is 30 lakhs. 30 lakhs. good. Income. Let's make loan to be 0. Let's make real estate also 0. Rest everything cannot be 0, because those are regular expenses. Very right, very right. Still the income is 24 lakh rupees per annum, which is almost 2 lakh rupees per month, by just servicing 10 customers and 120 customers in a year, and thereafter you are not increasing customers also. You are just focusing on these 120 customers every year. That's it. That is the power of UPOS. That is the power of UPOS. Plus, we are not adding the high revenue products. If you will see,
Many a times people tell me that, sir, there is only 0.3%, there is only 0.5%, there is only 2%, there is 0.25%. So we have considered only the lowest commission that we are getting. Right. Because there are many products where we are getting 8%, 9%, 4%, like in Bata, Levi's, in everything there is 4% plus commission for the UPass partner. But we have considered only 2% to be the highest one. And rest insurance and real estate we have done, this thing, loan and this thing we have already done a 0. Still, you see, let's do insurance also 0. Then also it is 18 lakh rupees per annum. 18 lakhs is that is the big plus point that we have to highlight. That even if you take off the global Ghana coins also, without that cash revenue itself is 18 lakhs. Currently I'm not considering this GG coin. 55 lakh rupees is GG coin. I'm not considering into this. Yes. Coin though I am not considering. Though the easiest thing for a UPass owner would be to create My Circle, because he would be having more customers, more UPVs under his belt. So for him to create a My Circle would be the easiest job. But if we consider that to be 0, insurance to be 0, loan to be 0, real estate to be 0, still the income is on a very higher side. It is almost like 1.5 lakh rupees a month by just managing 120 customers per month after 1 year. Which is approximately divided by 30. 4 customers in a day. 4 customers. I don't think so. Our earning can be easier than this. Today, if we want to earn 1.5 lakh rupees a month, I don't think so there is any tool which can first of all give it to you by servicing only 4 customers. And best part for customers is that they are earning more than what they ever desired कि वो cashback मिलेगा. विकास जी, ये जो इमीडिएट इनकम लिखा है आपने, इससे क्या तात्पर्य है? मतलब जैसे ही ये 120 कस्टमर जुड़ते हैं, इनकी ये इनकम शुरू हो जाती है. ओके. मतलब ये इमीडिएट कमीशन है. मान लीजिए मैंने अभी इन लोगों का रिचार्ज किया तो मुझे 36,000 रुपए मिल जाएगा. इतनी की ग्रोसरी बेची तो मुझे 72,000 रुपए मिल जाएगा. और आप सेगमेंट वाइज भी आरओआई देख सकते हैं, कौन सा सेगमेंट मुझे कौन सी आरओआई दे रहा है. जैसे केवल लाइट बिल का भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको 67% आरओआई मिल रहा है. एंड दिस आरओआई इज कैलकुलेटेड ऑन 54%, 54,000 rupees. 133% ROI would be on grocery selling. Clothing pay we 400%. Flights pay 89%. Travel and food pay 222%. Electronics pay 111%. And then in the end we have to tell that UPass partner, sir, that there is no renewal to this business. There is no risk to the business. You are not investing anything. Like उस दिन हम जब छत्तीसगढ़ में थे तो अनूप भैया ने यही बोला कि हमें जो स्टॉक करना पड़ता है, ये जो हमारा डेड स्टॉक है, इसका सबसे बड़ा टेंशन है. करेक्ट. यहाँ पे कभी डेड स्टॉक होने का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक आप रख ही नहीं रहे हो. दिस इज टोटली अ डिजिटल एनवायरनमेंट. करेक्ट. Yes. So I think this was about UPass, and second is our 3-in-1 income calculator. Deva. Yeah, Deva. See, this is actually we know that definitely UPass is having so many things to earn. I wanted to make some other changes here because please tell me. Whatever the calculation we have taken, it is like an hour calculation. Okay. Right. I wanted to think as a common person in a rural place. Can No, you see that? Tell me that also. Yeah, mobile and first one, you just make it 30,000 rupees. Okay, done. Approximately, because we will take a small area. No issue. Just go on. Let's see what would be the result. Glaser is 50,000. Clothing 20. Insurance 0. No insurance. Okay, actually there. Loan also 0. It is there. Flight also you just make it 10,000 rupees. Because rural people will not use that. Travel expenses. We can make it 0 also. Nah, let's see how it on 0 also. Let's make it 0. Travel and food around 20,000 rupees. Not even 10,000 rupees you put.
That Let's travel make and it zero also now. That let's make it zero. Okay, electronics 25,000. You make it 10,000. Okay. Okay, just you show. विकास सर, Yeah. सर आई एम वैभव, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था आज, तो जरा बताएंगे हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ये किस चीज की कर रहे हैं सर? ओहो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। इनको रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। मैं आपको भेज दूंगा, है ना? तब तक आप बस हमारे साथ रहिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है। Still, Deva, Yes, we have, and still we are not increasing the number, or you want to increase the number? No, 10 only. 12,92,000. Yeah, 12,92,000. we Loan want and insurance also zero. Loan and yeah, insurance also zero. that's why, sir, because we want this. Why we It is also already zero. It is already zero. It is zero, sir. Yes. Because yeah. you pass no. We can just tell them if they earn even 50,000 rupees also, definitely it will be a hot cake. So Arre this is Baba, what I wanted to see. This is 2 lakh rupees. Still is there. 1,01,000। Yes. Sorry. 2,12,000 का हो गया ना, तो 1,01,000 रुपए हर महीने। नहीं 2 लाख हर महीने नहीं है ना, ये एनुअल है। अच्छा, ये 2 लाख मतलब डिवाइड बाय 12 कर दीजिए ना। 17,000 रुपए महीना। Yeah, it is more than enough to sell an U-Pass, sir. Definitely. हाँ, बिल्कुल, because now you are talking about rural guy. Rural guy would not require much. Rural. Yes. So we can show them. This is what I wanted to say. Yeah, please. 17 से 20,000 या 25,000 की इनकम दिखा पाए जी। अगर 17 से 25,000 की इनकम दिखा पा रहे हैं रूरल या छोटे जगह पे, वो बंदा 50,000 लगा के, क्योंकि उसको लग रहा है 3 महीने में मैं पैसा रिकवर कर लूंगा 50,000 रुपए। बिल्कुल। तो उसे 50 नहीं लगाना, उसे 50 से 75,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। 54,000, 54,000 फॉर यूपॉस एंड अराउंड 15 to 20,000 फॉर अपलोडिंग मनी। Still almost 30 to 35% ROI every month now. Yeah. बहुत अच्छा। अगर 3 महीने में उसका 50,000 निकल गया तो बंदा को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, यार ले लेता हूँ, 3 महीने में रिकवर हो गया, उसके बाद तो मेरे को सिर्फ कमाना ही है। बट देखिए, यहाँ पे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये कैलकुलेटर यूज करवाइए, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हर चीज को जीरो कर दिया है यहाँ पे, उसके बावजूद ये रिटर्न आ रहा है। Yeah, you can, because we can show this, and after that if we add, no, that definitely it will be a plus point. क्योंकि आपने उसको पहला 10,000 कमवा दिया, उसके बाद तो उसको मालूम है इसमें कैपेसिटी 10 लाख कमाने की है। Yes. And again, first we need to cater A category customer, then B, then C, then D. This is E, right? Yes. This is actually E class customer. But Yes, still, for them also, if we put these values, and this is still a good income. Today people invest in Padilal, that ice cream, this thing, that freezer. It cost almost 75,000 rupees, and they are not earning more than 5,000 rupees, and that too they have a risk of ice cream getting expired. They have a risk of light going off, and then the damage in the novelty products. So there are so many damage also. Here they can. Because my friend is having ice cream factory. Sometime people will not get an earning of that electricity bill. I know. Arre, that is why I am taking an example of Padilal. Why? Because when I used to run that restaurant, I had Padilal fridge. It costed me almost 75,000 with the inventory, right? And the problem was one day my this thing in Surat. What happened? That this light people cut that एक दिन का वो जो करते हैं ना, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं? अरे वो शटडाउन जो होता है एक दिन, शटडाउन। मेरे सारे आइसक्रीम डी शेप हो गए। अच्छा, अब डी शेप हो गए तो वो डी शेप वाला आइसक्रीम को खाने को तैयार नहीं है। अब वो मेरा पूरा लॉस हो गया, जितना भी 8-10 हजार रुपए का इन्वेंट्री था वो जीरो हो गया मेरे लिए। यहाँ पे कोई इन्वेंट्री लॉस नहीं हो सकता है। तो ये हमें अगर लोगों को प्रॉपरली इस एक्सेल पे वर्क करा लिए गए, मैं बता रहा हूं, लोग हंसेंगे कि यार ये तो बेचना सबसे आसान काम है। हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, हम म्यूचुअल फंड बेचते हैं, जस्ट ये दिखा के, या आज जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, या अनूप भैया मेरे को साथ देंगे इसमें, कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी आप शोरूम ले लीजिए, वो 2-5% की आरओआई में खेल रहे हैं पूरा गेम। सारा गेम टर्नओवर का हो चुका है। सर 5 तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, 5 बहुत हायर साइड हो गया। क्योंकि धोखा साहब मेरे दोस्त है, तो वो बताते हैं, विकास अभी हमारा केवल समझ लो रोटेशन चलता है, 1-2% इसमें हम बचा ले जाते हैं, बस वो है हमारा। परफेक्ट। So I think UPOS is okay, this sheet is okay,
Please ask everyone in your team to practice this sheet before going to a customer. पहले कस्टमर की गोल सेटिंग कर दें, क्योंकि वो बाद में अपनी बात से नहीं मुकरेगा, क्योंकि हमने पहले कस्टमर को बांध दिया कि सर ये देखो आपने ये बोला था, आपका मैंने ये काम पूरा कर दिया यहाँ पे, अब बताओ चेक कब लेने आओ। करेक्ट। ये हो गई अपने इसकी बात, क्या कहते हैं इसका, अपना यूपॉस। अभी अपना नहीं, मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैं नाम भूल जाता हूँ, ये जो नामकरण वाली चीजें है ना, समहाउ पता नहीं मेरा बड़ा दिमाग बेकार है इस मामले में। अभी आप लोग को ये एसीपी का दिख रहा है शीट? नहीं, इसको चेंज करो ना। एक मिनट होल्ड करिए। अब जैसे हम लोग के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि लोग बोलते हैं सर हमारा छोटा पिन कोड मिल रहा है, वो तो गांव का पिन कोड मिल रहा है। करेक्ट। अब आप उनसे बोलो भैया कौन सा गांव है ये बताओ, और उसके हिसाब से डेटा डालते हैं। कितना पॉपुलेशन लोएस्ट लें आप लोग के पास जो एरिया है? तो सर नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत पॉपुलेशन बहुत कम है। आप नहीं, नॉर्थ ईस्ट का तो खैर मैं एक पिन कोड में तो यू विल नॉट फाइंड। हाँ नहीं, बट पिन कोड की एलिजिबिलिटी यही है कि अगर किसी एरिया को पिन कोड दिया जाता है तो उसमें कम से कम 50,000 लोग होने चाहिए। तो एरिया बढ़ जाता है। हाँ, एरिया भले वो बड़ा कर देंगे, मगर वो 50 पिन कोड का मतलब उनके लिए होता है 50,000 की पॉपुलेशन मिनिमम होनी चाहिए। सो एक एवरेज लेते हैं अपने, बिल्कुल वैसे भी नहीं करते हैं बट एक एवरेज लेते हैं। आपके हिसाब से एवरेजली कितना होगा? क्योंकि महानगरों की बात करेंगे, बॉम्बे में 5 करोड़ रहते हैं अकेले बॉम्बे में, सॉरी 1.5 करोड़, तो वहां पे तो एक पिन कोड के ऊपर कम से कम 10 लाख लोग रहते होंगे। बट अगर वही लखनऊ की बात करें तो शायद वहां पे थोड़ा कम रहते होंगे। तो एक एवरेज कितना पकड़ा जाए आपके हिसाब से? 1 लाख इज एन एवरेज। ये जो आपने पकड़ा है, तो मैंने बॉम्बे के हिसाब से ये 1 लाख फैमिलीज हैं, क्योंकि मैंने 5 लाख को डिवाइड बाय 5 किया है। तो अगर आप 1 लाख बोलेंगे तो मैं 1 लाख को डिवाइड बाय 5 करूंगा, मतलब वो 20,000 हो जाएगा, क्योंकि मैं फैमिलीज की बात करूंगा यहाँ पे। तो बताइए कितने परिवार लिखे जाएं? नॉर्थ ईस्ट का तो आप नहीं ले सकते, बाकी का लेंगे। नॉर्थ ईस्ट का लेने से यही होना चाहिए। अनूप भैया या बाकी जो वॉलंटियर्स थे हमारे? भैया अगर अपन प्रॉपरली लेते हैं तो 15 से 25,000 फैमिलीज का ले सकते हैं। ओके, तो मैंने 20,000 लिखा है। साल भर में हमारा एसीपी उस एरिया में काम करता है और ये 20,000 लोगों तक अपना एक एक पैम्पलेट पहुंचाने में इसको कितना खर्चा लगेगा? अगर 20,000 परिवार हैं और उनके घर में एक एक पैम्पलेट हमें डलवा देना है तो क्या खर्चा लगता है आपको लग जाएगा? ये न्यूज़पेपर से इससे डलवाएगा वो बंदा या जो मैसेजिंग करेगा, समझ लीजिए 10,000 रुपए। तो साल का 10,000 एसीपी लगा सकता है इस काम के लिए? हाँ करेगा, अगर उसको काम आए में 100% करेगा। करेक्ट। अब 10,000 हमने 20,000 परिवारों को अपने बारे में बता दिया कि भाई ग्लोबल गार्नर से शॉपिंग करोगे तो कैशबैक मिलेगा, ग्लोबल गार्नर के बिना करोगे तो 0 मिलेगा गारंटीड। अब आपके हिसाब से परसेंटेज ऑफ कस्टमर कितने आने चाहिए हमारे पास साल भर बाद? कितना परसेंटेज मानिए कि हमारे साथ रहेगा? 5% ले सकते हो। 5%। 5% जी। वैसे मैं आपका डेटा ले रहा हूं, बट हम वो जनता है, मैं आपको याद दिला दूं, जब हमारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है 80 पैसा तो हम जाके पेट्रोल टैंक फुल कराते हैं। यहां पे मिनिमम 3% तो बच ही रहा है ग्लोबल गार्नर में, और 100% के जो कॉइन मिल रहे हैं उनका बेनिफिट अलग है। बट मैं मान के चलता हूं कि 5% लोग हमारे साथ आना चाहेंगे। मैं आपका ही डेटा ले लेता हूं अभी, जो कि जेन्युइन नहीं लग रहा है मुझे, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं 5% लेते हैं। एक पिन कोड पे महीने के कितने वेंडर बना सकता है एसीपी? महीने के कितने वेंडर बना सकता है एक एसीपी? फटाफट। 5 आराम से बना सकता है। 5 महीने के मतलब महीने में तो फिर उसको एसीपी क्यों बनाना भाई? इज नॉट फिट फॉर एसीपी। जो 1 महीने में 5 एसीपी क्यों बनाना उसको? आप स्टेट हेड होके अगर एसीपी की गोल सेटिंग कर रहे हैं और आप ही 5 बोल रहे हैं तो वो तो कंसीडर करेगा एक ही बनाऊंगा तो ठीक है। ये भी बात है। ठीक है, चलिए 5 लेके देखता हूं अभी।
अभी तो नंबर हमें एब्जर्ड लेके चल रहे हैं कि देखते हैं एब्जर्ड नंबर में भी क्या फायदा है, क्या नुकसान है। एवरेज कमीशन हम वेंडर से कितना पकड़ सकते हैं? रूरल एरिया में कमीशन कम कर लो। कितना बोलिए ना? 5,000 ओके। और मैंने ये माना है कि हम अनलिमिटेड का पार्टनर की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल 10 पार्टनर एसीपी के पास हैं। वो कितने यूपास सेल कर सकता है महीने के पार्टनर? You have to put one only, sir. You can't put less than that. हाँ, of course we cannot put less than that. एवरेज इनकम ऑन यूपॉज अभी हमने देखा, चाहे लोवेस्ट से लोवेस्ट परफॉर्मेंस हो 1.5 से 2 लाख रुपए वो कमा रहा है। यहाँ पे मैंने एवरेज 1 लाख रुपए का पकड़ा है पर मंथ। 1 lakh is per annum ना? नहीं पर मंथ वहां पे भी मैंने पर मंथ ही दिखाया था आपको 1.5 लाख। सर मेक इट 25,000 ओनली, नो विल सी हाउ मच विल कम। 17,000 बताया था, 25,000 करो। चलो 25,000 कर देता हूँ, नो इशू। चलो 20,000 रख देते हैं, देखते हैं होता क्या है, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है। नंबर ऑफ यूपीवीज फ्रॉम दीज 5% फैमिली, मतलब 20,000 परिवार में से अपने पास 5% परिवार आए, मतलब 1000 परिवार केवल अपने पास हैं। अगर ये यूपीवी क्रिएट करेंगे तो ये महीने की कितनी यूपीवी क्रिएट करेंगे? 2 सर। वैसे तो आपने वहां पे जो डेटा दिया उससे ज्यादा होगा, मगर 2 ही मैं लेके चल रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब ये हमारे एसीपी की इनकम है हर महीने की 1 लाख रुपए महीना ऑन दी लोएस्ट परफॉर्मेंस। 2.5 लाख रुपए उसको केवल वन टाइम मिल जाएगा और उसके बाद उसको कोई काम नहीं करना है। 12 महीने बाद तो यूपॉस भी नहीं बेचना होगा, मगर उसकी ये पेंशन अब बंद गई। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अब ये सिस्टम जो बनाया है उसने, ये कभी रुकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्राहक कभी खरीदारी नहीं बंद करेगा, कोई भी वेंडर कभी बेचना नहीं बंद करेगा और कोई भी यूपॉस भी कभी अपना ट्रेड बंद नहीं करेगा। तो उसने अपना सिस्टम लगा दिया जो अब उसको कमा के देगा। करेक्ट? इसी सेम परफॉर्मेंस पे, अपने ये नहीं मान रहे हैं कि इससे ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, सेम परफॉर्मेंस पे सीपी करीब 4.5 लाख रुपए महीना कमाएगा। सेम परफॉर्मेंस पे एमसीपी करीब 15 लाख रुपए महीना कमाएगा। सेम परफॉर्मेंस वही है। अब देखिए आंकड़े वहां यहां पे भी अपने आप चेंज हो गए। 60 लाख रुपए एमसीपी वन टाइम कमाएगा, बट जो एनुअल कमाएगा, मंथली कमाएगा, वो 15,75,000 कमाएगा आपका एमसीपी ऑन दी लोएस्ट परफॉर्मेंस। इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और इस पे भी हमें इंश्योर करना है कि हमारा सीपी जब एसीपी को रिक्रूट करे तो इस पे उसकी गोल सेटिंग जरूर करे। आप अपने पास उसका एक साइन किया हुआ मंगा लो कि भैया तुम्हारी गोल सेटिंग हुई है कि नहीं हुई है। विकास जी वो जो 60 lakhs है ना वन टाइम इनकम, हाँ, that is included in that 15 lakhs, no na, that is extra. No, that is extra, that is one time income. So it is one time means monthly almost 5 lakh rupees. So it means 20 lakhs average per year, per month. No, one time. Next year it will not be there, na? Will not be selling. Okay, bhai. Okay, bhai. Start Next first year, year. we are assuming that in next 1 year we'll have this 9 lakh UPOS placed. After 1 year, we are not projecting that you will be earning from UPOS sale because you will not be allowed to sell UPOS. Till the end of UPOS, so that this will be the income. Yeah, when your UPOS sale will be stopped by the company, still you will be left with 15 lakh rupees a month. Okay. And which is on a lower side performance. Yes. Please, again, I'm repeating this. This is on a lower side calculation. Because जैसे अभी छोटे पिन कोड में काम करेगा। हाँ, सबसे छोटे पिन कोड पे काम करेगा तो। हाँ, सबसे छोटे पिन कोड पे और सबसे बुरा काम करेगा तो, क्योंकि अगर वो 5 वेंडर केवल महीने के बना रहा है, that means he is not working properly. Vikas ji, in that partner, can you reduce that 10 partner to 5 or because anyway your ACP has to give. No, should we do it 0.5 also? No, we can do 0.5 also. No, less than that because one ACP has to give 2 UPASs every month, right? Every month.
Right. According to that only you take it. Now we'll see how much it will come. So 2 UPAS means 20% performance. 20 means 0.25. 0.2, no? 0.25. 0.2. Okay. It will be 0.2, no? 0.25. Yeah. Because we will take that also. Because Hello. the Hello, done, ACP done. target is 2 only, na? So I have done it 0.2. Okay. So now you will be having 58,500 per month after this thing, and 48,000 one time. No, this is also very good income. हाँ भैया, इतना कम काम करने से तो ये तो 2 UPAS वो खुद ही बेचेगा ना जाके. Yeah, because we are asking them to work for at least 2 hours every day. At least we can show this. And let's do one more thing, no? Make it user income also 0, UPV 0. Then also it is 28,500 rupees. Yes, excellent. But yeah, vendor income also we have to make it 0 if user is not there. No, vendor income would be there, no, because UPAS is there. But okay. Let's say if we make vendor income also 0, then also it is 12,000 rupees. Yeah, no, ऐसा तो ACP चाहिए नहीं है हमको. भाई क्या? See, UPASs we can take. UPASs we can reduce too, because anyway we are giving a target of 2 UPAS, no? Let's see on 2 UPAS what would be the CP and MCP income. So CP would be earning almost 1.5 lakh rupees a month. Still it is good, no? MCP would be earning almost 6 lakh rupees a month. Again it is good. For this now they are not doing anything also. And still they will continue to get this income, 12 lakh rupees annual income they will continue, because they have sold only 2 UPAS a month. So company would have not reached 9 lakh UPAS. Correct? Yes. In that calculation, what we were considering, that 9 lakh UPAS would be achieved because so and so would be doing so many UPAS. Now because UPAS is on our lower side, so this income would be annual for him. Next year also this will come to him. Right? Okay, because he's selling that UPAS next year. Yeah, next year भी बेचेंगे ही ना, क्योंकि उसका अपना कंपनी का टारगेट 9 लाख UPAS नहीं पहुंचा हुआ, केवल 2, क्योंकि 2 UPAS महीने के बेचने का मतलब हुआ, लेट्स से अगर 36,000 30 से रुकिए 9 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 36,000, तो ये 25 महीने चलेगा कारवा, मतलब 2 साल आपका इनकम ये रहेगा. करेक्ट? यस. कॉम्पिटिटर लेके चले जाएगा सर. हाँ, कॉम्पिटिटर आके वो चेक लेके चले जाएगा 1 साल बाद में. हाँ, अगर आप 2 साल के लिए रख देंगे तो आपका पास में कॉम्पिटिटर आ जाएंगे ना. कंपटीशन भी आ जाएगा या नहीं भी आएगा तो भी मतलब स्लो इतना क्यों जाना, मतलब फिर मतलब हमारी फिर जरूरत नहीं है ना, इतना ही स्लो चलना है. तो हाँ, तो आज एनीवेज आप देखो, आज मैं सिंपल बोल रहा हूँ, लाइक अभी आप तमिलनाडु देखो, कर्नाटका देखो, दे हैव स्टार्टेड सेलिंग इट ऑन व्हील. अभी आप कल का जो सेशन आप देखो, लोग वेंडर के पास जा रहे हैं. पहले हमारे लोग वेंडर के पास जाने पे पिच रखते थे कि आपको ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा. हर बात में कल पिच पे यूपॉस आ रहा था. रमेश भाई को 2 बार बोलना पड़ा कि भैया तुमको वेंडर बनाना है, तुमको यूपॉस नहीं बेचना है. तो पिच हैज सडनली चेंज्ड आफ्टर लुकिंग एट दैट दिस थिंग कैलकुलेटर. राइट? सो आई थिंक अगर हम इस पे थोड़ा सा वर्क करवाएं अपने लोगों को, सो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा उनका ज्ञान चक्षु खुलेगा. यार जो हम सोच रहे हैं ये हो सकता है, ये केवल नंबर्स नहीं है, ये सच में होएगा. तो उनको अगर खुद ही हम ये दे दें कि ये कीप दिस शीट एंड यू कैन कंटिन्यू, so I think that will work for them. One more point, thank you. This vendor. So one more point before you go. The vendor, ना आपने vendor का जो list बता रहे हैं, in one pin code, you might not find many vendors. I mean, हर साल में you can't keep adding vendors, ना? Vendors का एक limit होता है. नहीं, इसलिए मैंने बोला ना, ये जो मैंने numbers लिए हैं ना, 150 वेंडर हर एसीपी को बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम 36 लाख वेंडर्स तक पहुंचना चाहते हैं. अगर अंबानी साहब की बात माने तो 3 करोड़ ग्रोसरी वाले को बोलते हैं. अंबानी साहब की बात माने तो मैं तो 36 लाख को सीधे 19,000 से डिवाइड कर रहा हूं, तो वो सीधा सॉरी
अपने 18,000 पिन कोड को मैं अपने टारगेट 36 लाख से डिवाइड कर रहा हूँ तो 150 आता है। तो हर पिन कोड पे 150 वेंडर तो है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर अंबानी साहब के साथ डिवाइड करूंगा तो 1500 वेंडर निकल आएगा। ओके, आई थिंक आई हैव टेकन मच ऑफ योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। कहाँ गए सब लोग? बाकी लोग गए क्या? रमन भैया, रमेश भाई? थैंक यू सर। रमेश सर आल्सो जी, विकास जी, हाँ जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शायद हमारे लोगों का ज्ञान चक्षु तो खुलेगा ही, स्पेशली हमारे स्टेट हेड और ये लोगों ने ये अगर समझ लिया और इसकी पावर समझ लिया जो आपने एक्सप्लेन किया ना, तो बाय हार्ट डेफिनेटली पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोगों के सामने रखा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं इसका रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगा, आप लोग बाद में भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब पूरा दिन भी हो गया, थक भी गए होंगे आप लोग। बट वही है कि बट इसको ऊपर थोड़ा सा आप सोचिए, विचारिए, इसको कैसे लोगों को सिखाना है कि हम केवल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये नंबर्स एक्चुअली वर्क करते हैं। जैसे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हम आपको वो तरीका दिखा रहे हैं। फेसबुक वाले ने, व्हाट्सएप वाले ने ये सब देखा है, तब जाके उन्होंने इतना पैसा लगाया उस कंपनियों में। करेक्ट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, एवरीवन, गुड नाइट, बाय।